Let us discuss about the different types of the pigments that involved in the photosynthesis. We know that photosynthesis it occurs in the presence of the sunlight. In the presence of the sunlight, the green parts of the plant it synthesize the organic material, that is the sugar, and this process is known as the photosynthesis. And the absorption of the light is carried out by the specific type of the pigments. Today we are going to study about the different types of the photosynthetic pigment that capture the light and convert it into chemical energy, that is the organic substance, glucose and the starch. तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ये कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, इन्हें कैसे आइसोलेट किया जाता है, इनके डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं, ओके, व्हाट इज मीन बाय लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज मीन बाय रिएक्शन सेंटर, व्हाट इज मीन बाय फोटो सिस्टम, ये सारे पॉइंट हमें डिस्कस करना है। और साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी आज हमें डिस्कस करना है। ओके, सो कुछ सवाल भी है यहाँ पर और उसके जवाब भी आप लोग दोगे। सीयर, सो जैसे कि आपको पता है क्लोरोफिल ए, that is the chlorophyll A and carotenoids are the universal pigment present in different groups of the plants from algae up to the angiospermic plant. Chlorophyll A and carotenoid pigments is present in each group of the autotrophic group of the plant. तो इसीलिए उसे हम फंडामेंटल पिगमेंट कहते हैं या फिर यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। Photosynthetic pigments are those pigments that capture the sunlight and transfer the sunlight into the chemical energy, light energy into the chemical energy, उसे हम कहते हैं photosynthetic pigments. So, ये कौन से photosynthetic pigments है जो light को absorb करते हैं? Now, we know that every chemical compound that has the inherent property of absorption of different wavelengths of the light, visible light or infrared, or we can say the ultraviolet rays. So different तरह के जो chemical compound है उनकी खुद की एक important property होती है, उसे हम that is the absorption of the light. हर एक compound अपने हिसाब से on the basis of the different wavelength of light it absorb the different concentration of the light. So ऐसे ही ये photosynthetic जो pigments है ये भी different wavelength of light को absorb करते हैं। So उसके जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? नाउ हियर ऑन द एक्स एक्सिस you can see the different wavelength of the visible light, that is from 370 nanometer up to the 680 nm. Okay, so we can say here 400 to 700 nanometer, it is the visible part of the spectrum, that is the VIBGYOR. Then on y-axis you can see the absorption of different wavelength of light by the different photosynthetic pigment. Here we consider chlorophyll absorption of light by the chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoid. क्योंकि यही जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके, जो लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। सो वो क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। Now, here, this graph is known as the absorption spectrum graph. What is meant by absorption spectrum? The graph that represents the absorption of different wavelength of light, that is known as the absorption spectrum. Then here, the absorption of light by different photosynthetic pigment is different one in different wavelength of the light. Now here, more or less, depending upon the type of the pigment, more or less absorption of light is occurring in different wavelength. Now here you can see from 400 to 500, in between this 400 to 500 nanometer, it is the range of, ये किसकी range होती है? It is the range of blue wavelength of the light. Now here this is the 680 nanometer wavelength of the light. Now we know that it is the wavelength of red visible light. Now yesterday we have seen an Engelmann spectrum and Engelmann's experiment. Engelmann's experiment is the first action spectrum experiment. तो एंजलमैन्स एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि रेड और ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट की प्रेजेंस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। सो यहाँ पर this chlorophyll A, it absorb. Now this blue line indicate the graph, the blue curve of the graph indicate the absorption of different wavelength of light by the chlorophyll A. Now here this chlorophyll A, it absorb the 430 or greater than 430 nanometer wavelength of the light. That is the
It is the blue wavelength of the light, region of the blue, as well as the 680 nanometer of the wavelength of light absorbed by the chlorophyll A. Okay, it means chlorophyll A, it absorbs the two different wavelengths of the sunlight. Then chlorophyll B, this chlorophyll B, it absorbs the wavelength of light which is greater than or equal to the 450 nanometer, and that is 650 nanometer. Then carotenoid, it absorbs the wavelength of light in between 400 and 500 nanometer only, means near about 4, that is 450 to 480 nanometer wavelength of light. This is the absorption of the wavelength of light by the carotenoid pigments. Now, the graph that represent the absorption of different wavelength of light by the photosynthetic pigment, it represent the absorption spectrum. तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाता है कि चाहे वो क्लोरोफिल ए हो, क्लोरोफिल बी हो, ये दोनों रेड और दैट इज ब्लू और रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट के नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब करते हैं. Like the same way, the carotene pigment, they absorb the orange, that is the blue-orange range of the photosynthetic wavelength of the light. That is the visible part of the light. Carotene जो है, ये ब्लू ऑरेंज वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब करवा कर देते हैं. So this is the absorption spectrum. Okay. अब this absorption spectrum, if we align this absorption spectrum with the action spectrum, ओके, सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और देखिए इस ग्राफ को, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ, इसे हम एक्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ के साथ अलाइन करेंगे. तो आपको नजर आता है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो ग्राफ देखा था, जिसमें जिसमें यहाँ पर जो ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट में है दैट इज क्लोरोफिल ए, ओके, और साथ ही साथ क्लोरोफिल बी, ओके, और साथ ही साथ कैरोटीन पिगमेंट. ओके, सो ब्लू और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब लाइट एब्जॉर्ब की जाती है. द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट between the means visible part of the light of the blue as well as red wavelength of the light is absorbed in large quantity by the different photosynthetic pigment like chlorophyll A, B as well as carotene pigments. So उस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर हम एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, तो चलिए उसे देखते हैं. सो दोनों भी एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं. नाउ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्शन स्पेक्ट्रम. वी नो दैट ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है. द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम experiment was performed by Engelmann by using the green algae, aquatic algae, aerobic bacteria, by using the different wavelength of the visible light, visible part of the spectrum. Okay, so ये action spectrum है. The graph that gives or the represent the rate of photosynthesis in different wavelength of the light. ओके, सो कल जैसे कि हमने आपको बताया था कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स like the number of oxygen release, like the carbon dioxide consumed, or the amount of the biomass produced per unit time, then concentration of CO2 get consumed by the plants, and the concentration of the that is the glucose produced per unit time after consuming CO2. तो चाहे वो O2 हो या CO2 हो या ग्लूकोज सिंथेसिस हो, तो इनमें से किसी भी लेवल पर हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को पैरामीटर के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ हियर द बेस्ट पैरामीटर which is used to measure the rate of photosynthesis is release of oxygen per unit time, okay, by using the algae or the hydrilla aquatic plant. ठीक है, so this graph, the graph that represent the rate of photosynthesis in different wavelength of the sunlight, that is known as the action spectrum. Now here, this is the visible part of the spectrum ranging from that is 370 to 700 nanometer. That is the visible part of the spectrum. अगर हम इस इससे पहले वाला जो ग्राफ है that is absorption spectrum को
एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ अगर अलाइन करते हैं तो हमें ये नजर आता है कि ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये ब्लू और रेड रीजन के जो वेवलेंथ ऑफ विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाइयर इन ब्लू एंड रेड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। व्हाई? सवाल आता है क्यों? व्हाई? क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने देखा, क्या देखा था? इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वी सीन दैट the different photosynthetic pigment they absorb the blue and red wavelength of the light। यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों भी एक दूसरे को अलाइन होते हैं। यानी पहले होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट इन द ब्लू एंड रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट, फिर उसी के वजह से होगा इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ब्लू एंड रेड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो ये दोनों ग्राफ हमें बताते हैं कि ब्लू और रेड रीजन की जो विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही सुटेबल है, जो ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। और इसी ब्लू और रेड रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होता है, ये एक्शन स्पेक्ट्रम भी दिखाता है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर हमारा जो एक्शन स्पेक्ट्रम और दैट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, ये कंसेप्ट यहाँ पर समाप्त होता है। इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, इसे याद रखिए। चलिए अगला पार्ट होता है। तो अभी हमने देखा, देखिए इस यहाँ पर दोनों भी एक साथ अलाइन हमने किया है। ओके, एब्जॉर्प्शन, the rate of photosynthesis is depends on the absorption of the light in the visible part of the spectrum। Okay, so that is the rate of photosynthesis is directly proportional to the absorption of the wavelength of light in red and blue region, that is the absorption spectrum and action spectrum। चलिए अगला पॉइंट। तो दूसरा एक सवाल आता है कि where does the photosynthesis taking place? We know that the green parts of the plant they perform the photosynthesis, but why the parts of the plant is greenish in color? Those part of the plant that contain the photosynthetic pigment containing chloroplast, that part of the plant it is greenish in color। यानी जिस जो प्लांट का पार्ट ग्रीन होता है उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से वो पार्ट ग्रीन कलर का होता है। नाउ here this is the picture or the diagrammatic representation of the ultra structure of the chloroplast। Now, as we know that the chloroplast is double membrane bounded cell organelle in which the outer membrane and inner membrane it bound the cytoplasmic content as well as the membrane bounded content of the chloroplast। So outer membrane and inner membrane, that is the double membrane bounded cell organelle हम इसे कहते हैं। The outer membrane, see here, जो outer membrane है it is permeable to the different types of substances, but inner membrane is selectively permeable। Then what is the size, shape and structure of the chloroplast? If you see the size, it ranges from 5 to 10 micrometer in the length, and it is 2 to 4 micrometer in the width। Okay, so it is the one of the largest cell organelle in the cytoplasm। Then what is the general shape of the chloroplast present in higher plants? हायर प्लांट में डिस्कॉइड शेप या डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इस पॉइंट को याद रखना है। देन लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज कंसिस्ट ऑफ आउटर, इट इज बाउंडेड विद आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इट इज नोन एज पेरिस्टोमियम। इस मेम्ब्रेन को हम पेरिस्टोमियम कहते हैं। ओके, द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज द पेरिप्लास्टिडल स्पेस, and this space is contain water and minerals। The outer membrane is permeable to different types of substances, but inner membrane is selectively permeable one। Next one, the stroma, the cytoplasmic content present inside the present inside the chloroplast is known as the stroma। The stroma, it is the crystallocolloidal substance where the different enzymes required for the dark reaction is present in the stroma। बच्चों इसे याद रखना है, stroma it contain the different enzymes required for the dark reaction। okay, dark reaction के लिए जो enzymes necessary होते हैं वो stroma के भीतर पाए जाते हैं। then the stroma contain, stroma में different तरह के substances है। see here, the stroma contain
the double stranded circular DNA, तो that is the double stranded circular DNA यहाँ present होता है. Due to the presence of this double stranded circular DNA, chloroplast it perform its binary fission. ये अपना binary fission कर अपनी quantity बढ़ा सकता है. We know that chloroplast as well as mitochondria, these two double membrane bounded cell organelles contain their own genetic material. Therefore, these two cell organelles are known as semi-autonomous cell organelle. Okay. The next one, the stroma. Inside the stroma, these starch granules and lipid granules can be seen here. Inside the stroma, a stalk-like structure is suspended here, which is membrane bounded. That is known as the grana. तो इसके बारे में क्या है उसे हम डिस्कस करेंगे. Now, what is meant by grana? A membrane bounded structure suspended in the stroma. It is known as the grana. It is also known as the lamellae. इसे lamellae भी कहा जाता है. तो दो तरह के lamellae होते हैं, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. That is the granal lamellae and stromal lamellae. So see here, अगर हम इस स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करते हैं, if we magnify this structure, अगर हम इस स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करते हैं, ओके, तब हमें दो तरह के यहाँ पर ग्राना नजर आएंगे. नाउ व्हाट इज मीन बाय ग्राना? तो बच्चों यहाँ जो सिंगल जो पार्ट ये डिस्क नजर आ रही है इस तरह की मेम्ब्रेन बाउंडेड लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन बाउंडेड जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं थैलाकॉइड. इज नोन एज थैलाकॉइड. इज नोन एज थैलाकॉइड. ओके, इसे हम थैलाकॉइड कहते हैं. ओके, then this is known as the thylakoid. Then stalk of thylakoid is known as the grana. ये थैलाकॉइड का जो स्टॉक बनता है इसे हम ग्राना कहते हैं. Inside the grana, light reaction is taking place. इस ग्राना के भीतर लाइट रिएक्शन होता है. दैट इज लाइट रिएक्शन हमने कल देखा जिसमें एटीपी सिंथेसिस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टू रिलीज ऑक्सीजन और NADPH सिंथेसिस होती है. सो ये रिएक्शन ग्राना में होती है, इसे याद रखना. ग्राना परफॉर्म द लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा इट परफॉर्म द डार्क रिएक्शन. ये दोनों पॉइंट आपने याद रखना है, कभी याद रखना. स्ट्रोमा को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, स्ट्रोमा में होने वाली रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं. ग्राना में होने वाली रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं. ओके, दैट इज ग्रैनल रिएक्शन मींस लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमल रिएक्शन मींस डार्क रिएक्शन. इस पॉइंट को याद रखना है आपको. Okay, if we observe again a magnifying structure of this, if this we observe the magnifying structure of this grana, then it looks like this one. तो ये हमें इस तरह से नजर आता है. Now see here, this is the grana. ये grana का स्ट्रक्चर है और ये grana का स्ट्रक्चर ये लिपिड मेम्ब्रेन बाउंडेड थैलाकॉइड से बना हुआ है. ओके, सो दिस इज द ग्राना. सो ये थैलाकॉइड स्ट्रक्चर है. दिस इज द थैलाकॉइड. थैलाकॉइड को हम दो डिफरेंट तरह के थैलाकॉइड्स हम मानते हैं. दैट इज द ग्रैनल थैलाकॉइड एंड स्ट्रोमल थैलाकॉइड. थैलाकॉइड को हम लैमेला भी कह सकते हैं बिकॉज इट इज द लिपिड बायलेयर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, इसीलिए हम इसे लैमेली भी कहते हैं. ठीक है. सो दो तरह के थैलाकॉइड या फिर लैमेलीज होते हैं, दैट इज ग्रैनल लैमेली एंड स्ट्रोमल लैमेली. ओके, ग्रैनल लैमेली एंड स्ट्रोमल लैमेली. व्हाट इज मीन बाय ग्रैनल लैमेली एंड व्हाट इज मीन बाय स्ट्रोमल लैमेली? तो बच्चों देखो, ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा स्ट्रोमा है. दिस पार्ट इज द स्ट्रोमा. ये पूरा पार्ट जो है ये स्ट्रोमा है, ये पूरा स्ट्रोमा से कवर है. ओके, और इसके भीतर जो पार्ट है, ये जो इस ग्रैना के भीतर जो पार्ट है, इट कंटेन द वाटर. इसे कहते हैं ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड. इसे थैलाकॉइड की ल्यूमेन कहते हैं. इट इज नोन एज द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड. ओके, इट इज रिच इन वाटर. ओके, सो ये जो थैलाकॉइड है या फिर लैमेली है, इसे हम दो डिफरेंट हिस्से में बांटते हैं. एक द थैलाकॉइड और द लैमेली विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द स्ट्रोमा इज नोन एज द स्ट्रोमल लैमेली. तो देखो, ये जो लैमेली है ये स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है, इसलिए इस लैमेली को हम स्ट्रोमल लैमेली कहेंगे. व्हाट इज मीन बाय स्ट्रोमल लैमेली? द लैमेली विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द स्ट्रोमा इज नोन एज द स्ट्रोमल लैमेली. ये स्ट्रोमल लैमेली है. ओके, देन ग्रैनुलर लैमेली.
द ग्रैनल लैमेली, द स्टॉक ऑफ द थैलाकोइड इज नोन एज द ग्रैनल लैमेली, तो ये ग्रैनल लैमेली कहलाएगी। द कंटेंट ऑफ ग्रैनल लैमेली एंड स्ट्रोमल लैमेली इज डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर कहीं पर राउंड नजर आ रहे हैं, कहीं पर ऐसे इस तरह से लॉलीपॉप की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, कहीं पर स्क्वायर नजर आ रहे हैं, तो ये सारे इंडिकेशन है कि यहाँ पर इस इट इज द दिस थैलाकोइड और लैमेली इट इज लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। एंड दिस लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन इट कंटेन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, different electron carrier. What is the content of lipid bilayer membrane content of thylakoid or lamella? Electron carriers. Okay. Second one, ATP synthase enzyme, ATPase enzyme. ATP synthesis करने वाला enzyme यहाँ पर present है. Then it contain PS first and PS second, photosystem first and photosystem second. तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है ये इस थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर होती है, ग्रैनल लैमेली और स्ट्रोमल लैमेली के लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन पर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ एक और चीज NADH रिडक्टेज एंजाइम, NADH रिडक्टेज एंजाइम, तो ये सारी चीजें ये ग्रैनल लैमेली और स्ट्रोमल लैमेली इस पर प्रेजेंट होती है। अब कौन सी चीज कहां पर प्रेजेंट है, लिपिड लेयर मेम्ब्रेन पर कहां पर बाउंडेड है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ सी हियर। ओके, सो साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स भी यहां पर प्रेजेंट है, दैट इज द आयरन कॉपर आयरन एंड सल्फर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, दैट इज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको इस ग्रैनम में आपको दो डिफरेंट तरह के लैमेली नजर आ रहे हैं, दैट इज स्टॉक मेमरी, ओके, स्टॉक लैमेली और स्टॉक ग्रैना एंड अनस्टॉक ग्रैना और अनस्टॉक मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज स्टोमल लैमेली, स्टॉक ग्रैना is known as the stalk thylakoid is known as the granule lamella. So what is the content of स्टॉक मेम्ब्रेन और ग्रैनल लैमेली एंड स्ट्रोमल लैमेली, इस पर नीट में कहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसे ध्यान रखना है आपने। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रैनल लैमेली के बारे में। दिस ग्रैनल लैमेली, द लिपिड बाइलेयर ऑफ द ग्रैनल लैमेली इज अटैच विद इट कंटेन it attached with the photosystem first as well as photosystem second, photosystem first and photosystem second। तो photosystem क्या होती है? photosystem, it contains the photosynthetic pigment that release the electron, that release the electron। तो ये दोनों photosystem का काम क्या है? photosystem contain the different photosynthetic pigments that release the electron, that release the electron। तो photosystem first and second it is present in granule lamellae। Okay, the next one, then stromal lamellae। Now the stromal lamellae it contain only photosystem first। ओके, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ग्रैनल लैमेली में फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों होते हैं और स्ट्रोमल लैमेली में सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट होती है। और कल हमने देखा फोटोसिस्टम सेकंड जो होती है वो ऑक्सीजन इवॉल्व करती है, हेल्प इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू रिलीज द ऑक्सीजन। ओके, इसके अलावा जो एटीपी सिंथेज एंजाइम नजर आ रहे हैं, दिस एटीपी सिंथेज एंजाइम, दैट इज एटीपी सिंथेसिस करने वाले जो एंजाइम्स है ये ग्रैनल लैमेली और स्ट्रोमल लैमेली दोनों पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है ये भी स्ट्रोमल लैमेली और ग्रैनल लैमेली दोनों जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रैना। ठीक है, तो आपको ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट समझ में आया होगा। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइन विद देयर फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वॉल्स। ओके, ये एनसीईआरटी में दिया गया सवाल है। व्हेन वुड बी द परपेंडिकुलर, व्हेन वुड बी द क्लोरोप्लास्ट परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसकी ओर ध्यान रखना। क्या पूछा गया है? सी हियर, सपोज ये सरफेस है और मतलब दिस इज द सेल और इस सेल के भीतर क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है,
सो इसे हम मैग्नीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सरफेस है सेल का और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। देखिए सी, द सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द सेल। ओके, नाउ सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज हियर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सेल। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दो चीजें आपको नजर आ रही हैं। ओके, सो ये है ए सेल, सॉरी ए क्लोरोप्लास्ट, और ये है बी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इन दोनों में, ए और बी, इन दोनों में क्लोरोप्लास्ट की जो अलाइनमेंट है या अरेंजमेंट है वो सेम है क्या? द सरफेस ऑफ द सेल एंड सरफेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज पैरेलल हियर इन ए, बट द surface of this chloroplast is perpendicular to the surface of the membrane। ये कब होता है? ये कब होता है? when the light intensity is very much greater, जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा ही ग्रेटर रहती है, उस समय these chloroplast they become perpendicular to the surface of the cell to get oxidized due to solarysis. What is meant by solarysis? Solarysis means the degradation of the chloroplast or photosynthetic pigment by the oxidation process in the intense sunlight is known as solarysis। उसे solarysis कहते हैं। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट। देन ए, व्हाट इज दिस ए? ए में क्या होता है? यहाँ पर द सरफेस ऑफ द सेल एंड द सरफेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल है। ओके, ये पैरेलल क्यों है? नाउ हियर टू कैप्चर मोर एंड मोर वेवलेंथ, मोर एंड मोर लाइट, ज्यादा से ज्यादा लाइट को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर ए सेल, ए जो अलाइनमेंट है ये डिम लाइट में होती है। मींस द सरफेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट अलाइन पैरेलल विद द सरफेस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये लाइट को ज्यादा से ज्यादा लाइट ये डिम लाइट है यहाँ पर। ओके, इस समय डिम लाइट है और इसे कैप्चर करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया की आवश्यकता है। इसीलिए ये जो ए क्लोरोप्लास्ट है इट बिकम्स पैरेलल टू द सरफेस। सो दैट इज द केस। परपेंडिकुलर कब होता है और दैट इज पैरेलल कब होता है, इसका जवाब आपको मिल गया होगा, ठीक है। सो लास्ट के 2-3 मिनट बाकी हैं तो इसे हम एंड करते हैं। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है इसे हमें आगे जाकर डिस्कस करना होगा। ओके, सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कौन कौन से होते हैं। ओके, जिसमें हमें क्लोरोफिल, ज़ैंथो दैट इज कैरोटिनॉइड्स और थाइकोबिलिन पिगमेंट्स के बारे में जानना होगा, ठीक है। सो लेट अस स्टॉप हियर। आज हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, ठीक है। सी यू टुमारो।